अब एक नया कंपनी क्रिएट कर देते हैं। इस कंपनी में क्या है, हमारा अकाउंट लेडजर हम लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं इस वीडियो से। अब एक नया कंपनी क्रिएट हो रहा है। कंपनी का नाम होगा कस्टम अकाउंट लेडजर। स्टेट तो मैंने लिया कर्नाटक। अब कंपनी तो फॉर्म हो रहा है। Now after the completion of the company, I am going to create a voucher serial number for voucher number for sales and as well as receipt. Serial number is not needed here, so serial number videos I am doing it later. I am covering almost all the topics. Some I can solve and some I cannot solve. So with my limited knowledge, I am going to solve as much as possible. See, now the company is created. Now user authentication mode not required for me. If you need it for you, you can authenticate. Now I am coming to voucher configuration, setting voucher number to automatic. Here auto round of final amount, upper limit तो प्लस कर दिया, and for the lower limit it is minus, and nothing else needed over there. Now coming to the numbering, it is set to automatic numbering of sales invoices. Prefix will be S/23-24 /. Starting number will be 1 only. Now even for the receipt also I am doing same. For the receipt, instead of S, it will be starting from R. Voucher numbering will be set to automatic. Renumbering frequency will be once in a year. The prefix will be R/23-24 /1. So with this, now I am starting to create account masters. So for the time being I am creating 2 or 3 account masters. Bharat Automobiles, group sundry debtor, and address will be Hosnagara Road, Rippanpete, Karnataka State, Shimoga District, Karnataka State. ये पूरा डमी एड्रेसेस है और रेट भी डमी रेट है। गायत्री ऑटोमोबाइल्स, अनंतपुरा, न्यू बीएच रोड, सागर। ये एड्रेस में मैं बनाने वाला हूं। अभी नाम तो बनते आ गया। अब फ्रॉम हियर द एड्रेस विल बी न्यू बीएच रोड, अनंतपुर, सागरा तालुक। बस इतना ही सेव कर दिया। अब दूसरा पार्टी शेट्टी ऑटोमोबाइल्स, सन्ड्री डेटार ग्रुप में, एसएस रोड, रिपनपेटे। अब इतना तो बना लिया, अकाउंट्स तो बन गया। अब स्टैंडर्ड फॉरवर्ड में नहीं चलता ही मुझे। अब दोबारा बैक आता हूं कॉन्फ़िगरेशन में, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में सन्ड्री डेटा सिलेक्शन कर देता हूं। सो देयर आई डू सी 3 इनवॉइसेस, एंड फ्रॉम 3 इनवॉइसेस नाउ आई हैव टू सेट क्रेडिट डेज फॉर सेल्स. So Bharat Automobiles, it is set to 14 days. Gayatri Automobiles again set to 30 days. Shetty Automobiles, now the credit days for sales is set to 14 days. ठीक है, अब तो हो गया. Now I have to create items. For creating the items I am following standard procedure.
plug short 175Z1. अब I want actually, now I'm closing it because I want alternative account to be activated. So here in the futures and options, now I have selected inventory, and in that inventory I have selected packing units and alternative units of items. ओके अब हम लोग शुरू करते हैं आइटम मास्टर क्रिएशन. नाउ एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग आइटम मास्टर्स. प्लग शॉर्ट 175Z1 group, it is set to general as it is default general. Now I have pressed F3. Now created box and boxes. यहाँ अल्टरनेटिव यूनिट में मैं कर दूंगा पीसेस. एक बॉक्स में 10 पीसेस आता है, 10 pieces per box. So I do assume that we have 4 boxes, and amount of that 4 boxes will be 4 into 400, 1600. Now tax category is 18%, set to 18%, and main unit sales amount per box will be set to 500 rupees. So now I'm coming back. Now we start making natural invoices. अब मैं इनवॉइस बना रहा हूं. इन बीच क्या है, क्लच प्लेट होंडा ASK. अब F3 दबा के एक यूनिट क्रिएट किया सेट बार सेट्स. नाउ आई हैव क्रिएटेड एन यूनिट फॉर द क्लच प्लेट होंडा ASK आइटम. So there is no, tax category is there. It is set to 18, and sales price set to 145 plus GST. Now I am trying to save this once again. Conversion factor cannot be 0, it says. ओके अब शुरू किया. इन्वेंटरी में आया, इनपुट तो पैरामीटर तो ले लिया. हाइड तो नहीं करता हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू हाइड इट. आइटम, अब आइटम तो ऐड कर रहा हूं. क्लच प्लेट होंडा ASK, होंडा ASK. ओके अब GST 18% का कैटेगरी ले लिया. सेव किया, अब सेव हो गया. ठीक है. अब इसके बाद सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, सीट प्लेट होंडा मेटल टाइप. ये आपको आइटम दिखाने के लिए बस. I want to make you familiar with the theory, that's all. Now GST category 18%. सेव किया. अब सेव होते ही अब इनवॉइस डालने के लिए शुरू किया मैंने. यहां लेता हूं LGST आइटम वाइज, भारत ऑटोमोबाइल्स ले लिया. अब क्लच प्लेट होंडा ASK एक सेट,
सेव किया, एक इनवॉइस तो सेव हो गया। ओके ठीक है, अब गायत्री ऑटोमोबाइल्स ले लिया, क्लच प्लेट होंडा एक्सेट, इसके बाद प्लग शॉट 2 बॉक्स हो गया। अब इसके बाद गायत्री ऑटोमोबाइल्स सीट प्लेट होंडा मेटल 1 पीस, अब why I am showing you all this is, it is something like a real life scenario। अब हो गया, ये आपका एक्चुअल असल बिल जो बनाते हैं ऐसे ही प्रोसेस रहता है, इसके लिए एक डेमो दिखा रहा हूं। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए रियल लाइफ सिनेरियो। So now I think I have already generated 3 invoices as a demo for Gayatri Automobiles, and now this Shetty Automobiles, this is the first invoice for the Shetty Automobiles, clutch plate Honda 1 set. Now I want to take seat plate Honda metal 1 piece. With that I am stopping that। अब आता हूं, यहां पे आते हैं, अब डिस्प्ले पे आते हैं। अकाउंट लेडजर हमने ओपन किया, सेल्स रजिस्टर ओपन किया, ऐड टू फेवरेट किया। सो आई मे नॉट बी हैप्पी विद दैट। एसक्यूएल क्वेरी में आया, क्रिएट शॉर्टकट किया, कंट्रोल शिफ्ट F2, ये मेरा हमेशा मेरा पसंदीदा शॉर्टकट की है। सो आई डोंट चेंज एनीथिंग लाइक दैट, इट विल बी ऑलवेज kept with me। So that account I have taken Gayatri Automobiles name. Now I have been finding only 3 invoices. Actually we did put only 3 invoices. So naturally I am seeing 3rd invoice. Now I am adding custom column. Name of that custom column will be, oh what is this, I am going to add one more query. Yes, I left it over there. Now press Ctrl Shift F2. Now I am writing the query. Select tran1.master code 1 from tran1, where tran1.voucher type is equal to 9. Where tran1.voucher type is equal to 9. This is, I want to test, that's all. This I got the code. What is this code? That is party code। अब इस सब क्वेरी लिखता हूं, select name from master 1 where code is equal to tran2 dot master code 1, बस इतना ही लिखता हूं। बस अभी इतना लिख के क्लोज कर देता हूं, यहां पे आता हूं, सेव करके रन करके देखता हूं मेरा कंफर्मेशन के लिए। अब तो ठीक है, पार्टी का नाम तो आ गया। अब क्या कर देता हूं, एंड लगा दिया लास्ट लाइन में, वेयर tran1.voucher code is equal to @voucher code, इतना तो लिख दे। सॉरी इट्स नॉट voucher code, @P1। अब क्वेरी टाइप विल बी कस्टम कॉलम क्वेरी। अब देखिए, अब मैं एक ऐड कर रहा हूं नया फील्ड, ये नेम होगा, इसका रिपोर्ट टाइप होगा स्पेशल रिपोर्ट। Now after that I'm going to add one more field, and that field is party। This is that field, PARTY, party। Here I'm selecting after F1, यहाँ इसका SQL क्वेरी होगा U एंड VC, वोचर कोड। जो वोचर रहता है, जो वोचर में रहता है वही बाहर आता है। अब ये तो आ गया, नहीं आया, ग्रिड ठीक से रिफ्रेश नहीं हुआ। अब देखिए आ गया। अब
तो देखिए पार्टी का नाम आ गया गायत्री ऑटोमोबाइल्स। अब मैं दूसरा क्वेरी लिखते जाता हूं। ओके ठीक है, अब इतना ही लेता हूं मैं। अब ठीक है, अब एक क्वेरी लिखनी शुरू करता हूं। अब यहां पे दूसरा शेट्टी ऑटोमोबाइल्स का टेस्ट कर रहा हूं। एक्चुअली इनफैक्ट इट शुड बी ओनली वन, यस इट इज ओनली वन इनवॉइस, and then Bharat Automobiles also it will be only one invoice because we did put only one invoice. Okay, now I am writing one more query by name U1. U1 select tran3 dot due date from tran3 where tran3 dot voucher code is equal to @P1 and tran3 dot voucher type will be voucher type is equal to 9. That is the query, that's all. where के सामने पीछे I should have added and, अब तो and add कर रहा हूँ, किया and where tran3 dot voucher code is equal to @voucher code @P1. अब customer query will be custom column. From this custom column it's okay. Now अब हम क्या करते हैं, ऑल पार्टीज में देखते हैं हमारे लेडजर में क्या हुआ। नो नथिंग चेंज्ड। मैंने वो डिलीट कर दिया बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। अब आके मैं देखता हूं, आल टेल दबा के लेडजर पे स्पेशल रिपोर्ट ले लिया। डेट रेंज तो जो लास्ट डेट है वो रेंज पे ही रहेगा, उसको ऐसा ही रहने देता हूं। अब क्या हो गया, अब मुझे लिखना पड़ेगा ड्यू डेट। इसको टेक्स्ट में लेता हूं U2 VC invalid query because there is no query by name U2, it's only U1, so instead of 2 now I am making it to U1. अब क्या हो जाता है, अब रन करके देखते हैं। if I run the program then I got due date. Okay, now I got name, now I got the second query I got due date. This due date is common for every party. Yes, 14 days due date, so it comes to 20 date. अब भारत 1 तारीख को हो गया, 15 तारीख को ड्यू डेट हो जाता है। अब ड्यू डेट के बाद दूसरा क्वेरी लिखना पड़ता है, एक रिसिप्ट डालते हैं। डेट क्या डेट, आज का डेट नहीं, कल का डेट 2/4। मेरे सिस्टम का डेट है 29/11/2023, लेकिन ये तो डेमो वर्जन सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आई कैन नॉट टेक एनीथिंग मोर देन दैट। आई स्टार्टेड ऑल द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अप्रैल, सो माय ड्यू डेट शुड बी more than 200 because I have started from April 1st, whereas the system date is 29/11. अब तो इतना तो आ गया, रिसिप्ट तो आ गया। अब क्या करते हैं, शॉर्ट नरेशन को हटा दिया। अब आई एम राइटिंग वन मोर क्वेरी बाय नेम U2 select sum of tran3 dot value 1 from tran3 where tran3 dot voucher code is equal to @voucher code. अब
इतने इतना के बाद ग्रुप बाय ट्रांथरी डॉट नंबर वोचर नंबर ट्रांथरी डॉट नंबर देयर इज नो वोचर नंबर लाइक दैट इट इज ट्रांथरी डॉट एनओ ऑर्डर बाय ट्रांथरी डॉट एनओ असेंडिंग ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರ್ಮಾನ ट्रांथरी डॉट एन असेंडिंग अब क्या करना पड़ेगा अब एक क्वेरी लिखना पड़ेगा वेयर ट्रांथरी डॉट वेयर सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू ट्रांथरी डॉट मास्टर कोड वन इज इक्वल टू @p1 ये क्या हुआ ये ठीक नहीं लगता है मुझे मैंने तो लिख दिया क्वेरी क्योंकि आई एम नॉट कंसिडरिंग ऑल दैट इज इक्वल टू @p1 चलो ठीक है हाँ या अब देखते हैं पेंडिंग अमाउंट अब U2 तो होगा इसके बाद अब पर्टिकुलर्स के लिए U1 तो पार्टी का नाम वहां पे है वही नाम तो देना पड़ेगा U1 तो वहां पे है इसलिए अब U1 तो देना पड़ेगा दिस हैज नॉट कम बिकॉज सी इट्स ए मिस्टेक व्हाट इज दैट मिस्टेक as I doubted earlier see I am not bothered about tran2.mastercode1 it is just tran3.vouchercode is equal to @vouchercode इतना ही करना पड़ेगा जो इनवॉइस में है वो इनवॉइस से हम लोग लेना पड़ेगा where tran3.vouchercode is equal to @p1 ये परफेक्ट है ये क्वेरी तो परफेक्ट है अब क्या हो जाता है still it has not come because instead of that I have to make it VC अब सेव कर देता हूं न्यूमेरिक तो ठीक है अब सेव कर देता हूं सेव करते ही अब क्या हो जाता है अब रिफ्रेश होते ही एक बार ग्रिड से I got the answer 1351 DR 3051 CR that has no effect and then by adding last two invoices it comes to 1145 DR debtor balance अब ये पार्टी का तो हो गया अब इतना होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं विथ अब इसको छोड़ देता हूं अब एक सोचता हूं U3 अब लिखता हूं select name from master 1 where code is equal to tran2.mastercode1 from tran2 where tran2 dot which type is equal to 9 14 and tran2 dot sr number is equal to 2 अब इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं सो आई गेट बैंक नेम where and at where select name from master 1 where tran2.vouchercode is equal to @p1 ये कस्टम कॉलम में आता हूं यहां पे आके अब मुझे क्या चाहिए पार्टी का नाम नहीं मास्टर कोड 1 इज नॉट पार्टी नेम इट इज बैंक अकाउंट नंबर नेम इफ इट इज कैश दैट विल कम एज कैश
रिसिप्ट का सामने कैश अगर आया तो कैश बोल के प्रिंट होके आ जाता है, नहीं है तो बैंक को आया तो बैंक का आ जाता है, बिकॉज आई डोंट नीड एनी चेक नंबर एंड ऑल, वो भी बुला सकता था. I felt it is not necessary, so I gave up. बैंक यार कैश, बैंक अकाउंट. अब लास्ट कॉलम लेता हूं, नेचुरली मुझे लेना पड़ेगा लास्ट कॉलम. अब पेमेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट को पैसा आ चुका है. अब इसके लिए क्या कर देता हूं, अब 15 तो बस 15 शायद कम हो जाता है. नाउ आई एम मेकिंग इट 40 इज देयर हियर, U3 एंड VC वोचर कोड. अब सेव कर देता हूं. सेव करने के बाद अब रन करके देखता हूं, बस वो जो पार्टी का है वही पार्टी को आ गया, दूसरा का कुछ नहीं हुआ. 1145 इज एक्चुअल ड्यू. अब planning to mention a dummy account number because many firms will be having 2 or 3 bank accounts. They can have as many as bank accounts depending upon their needs. अब सेव कर देता हूं. चलो ठीक है, वहां भी हुआ यहां भी हुआ. अब तो ये हो गया. अब क्या हो जाता है, अब सेव फॉर्मेट तो कर दिया. अब प्रिंट करके देखता हूं, इतना तो हो गया. अब U5 लिखा, सेलेक्ट. अब पेंडिंग डेज कितना डेज हो गया, ये डेट ऑफ माइनस tran3 डॉट ड्यू डेट फ्रॉम tran3 वेयर tran3 डॉट voucher code is equal to @P1 and tran2 dot voucher type is equal to 9. And tran2 dot sorry it is not tran2, tran3 dot voucher type is equal to 9 because we are dealing with the due dates, so naturally that due date does come from tran3 table, so as that case it is mentioned as tran3. इसका हेडर होगा पेंडिंग डेज. अब कितना दिन से ये बाकी है ये दिखा देता है. मेरा सिस्टम में आज का डेट है 29/11/2023. सो आई हैव नो मीन्स बाय चेंजिंग माय सिस्टम डेट बिकॉज आई एम यूजिंग ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर. सो ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर डजंट रन मोर देन 30 days. इंस्टेड ऑफ टेकिंग April while creating the company, I could have taken this month's date, but I am not interested in that, so I have taken already previous date, that is 1st April date. अब ये क्या हो गया, आप देखिए यहां सामने आ जाता है पेंडिंग डेज, पेंडिंग अमाउंट का सामने आ गया पेंडिंग डेज. अब पेंडिंग डेज का तो थोड़ा कम कर देता हूं. इंस्टेड ऑफ 40 आई नीड ओनली 15. अब फॉर्मेट तो सेव हो गया. अब क्या कर देता हूं, हो गया बस. अब प्रिंटिंग के लिए चलते हैं. एज इट इज फ्रॉम बिजी दैट डजंट हैव एनी इफेक्ट, सो इट्स ए वेस्ट. ये कुछ फायदा नहीं है, इसमें कुछ नहीं आता है, जो डिफॉल्ट है वही आ जाता है. अब नो एज इट इज फ्रॉम ग्रिड, नाउ आई हैव सेलेक्टेड ओके.
अब देखिए स्क्रीन पे देखिए ये सब इनवॉइस प्रिंट होके आ जाता है। ओके बस जी।